أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آگے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. مفسرین کا لکھنا ہے کہ 80 لوگوں سے زیادہ کوئی مسلمان نہیں ہوا. 950 سالہ محنت کے نتیجے کے اندر میں 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور تفسیر طبری کے اندر میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ان 4 بیٹوں کے اندر میں 3 بیٹے حام، سام اور یافث، یہ 3 بیٹے مسلمان تھے. اور ایک چوتھا بیٹا تھا کنعان، یہ بے ایمان تھا. 3 مسلمان بیٹے تھے، ان کی 3 بیویاں بھی نوح علیہ السلام پر ایمان لائی تھی. نوح علیہ السلام کی بھی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کافرہ تھی اور ایک مسلمان تھی. تو مجموعی طور پر 80 کے قریب جو ہے لوگ مسلمان ہوئے تھے. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے نتیجے کے اندر میں لوگوں کی 4تھی پشت اور 4تھی نسل سمجھانے کے اندر میں پیدا ہو گئی تھی. 950 سالہ زمانہ جو ہے کوئی کم زمانہ نہیں ہے. اخیر کے اندر میں قوم کا کوئی بڈھا آدمی جب بیمار ہوتا، مرنے کے قریب ہوتا، اور اس کے گھر والے اس کو وصیت کے لیے کہتے کہ کوئی وصیت کرو، تو وہ بڈھا یوں کہتا کہ مجھے ایک جگہ لے چلو. تو گھر کے جو طاقتور لوگ ہوتے تھے اس بڈھے کو کندھوں کے اوپر میں بٹھا کر لے جاتے جہاں بڈھا کہتا، اور وہ بڈھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر لے جاتا اور وہاں پر اس کو اتارا جاتا. نوح علیہ السلام نے سامنے بیٹھ کر وہ بڈھا اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرتا کہ سارے لوگوں کی بات ماننا لیکن اس کی بات مت ماننا، یہ میری نصیحت اور وصیت ہے، اور یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس ہو جاتا. تو اس طور پر نوح علیہ السلام کے ساتھ میں ہر چیز کے اندر میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا. آگے سورہ نوح کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے. رات میں، دن میں، علانیہ طور پر، چپکے سے، ہر قسم کے طریقے سے نوح علیہ السلام نے ان سے دعوت اور تبلیغ کا کام پیش کیا. اور وہ قوم جو تھی ان سے بحث و مباحثہ کرتی رہتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ان آیات کے اندر میں فرمایا. قالو، نوح علیہ السلام کی قوم اور لوگوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ میں جو ہوا وہ بہت زیادہ ہو گیا. دونوں کا ترجمہ یوں کریں، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم
हमारे साथ में लड़ते और झगड़ते ही रहे, हमारी और तुम्हारी लड़ाई चलती ही रही, और हमेशा तुम हमको डराते रहे अल्लाह के अज़ाब से कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, तो ले आओ वो आवाज़, वो अज़ाब। फ़अतिना बिमा ताइदुना, जो तुम अज़ाब का हमको वादा करते हो, वो अज़ाब ले आओ। इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे लोगों में से हैं, यानी वाक़िअतन अगर तुम अल्लाह के रसूल हो और नाफरमानी करने पर अल्लाह का अज़ाब आता है तो ले आओ। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह, जिसकी तुम जल्दी मचाते हो और जो तुम अज़ाब का मुतालबा कर रहे हो, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जब चाहूँ अज़ाब को लाऊं। इसी तरीके से मुआजिज़ात जितने भी हैं, ये मुआजिज़ात भी अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत के अंदर में होते थे। नबी के हाथ के अंदर में मुआजिज़ात का इजहार और मुआजिज़ात को ज़ाहिर करना उनके बस की बात नहीं होती थी। अल्लाह का अज़ाब ये अल्लाह की कब्ज़े कुदरत ही के अंदर में है, किसी नबी या किसी वली के हाथ में नहीं है कि जब वो चाहें और दुआ करें और अल्लाह का अज़ाब उतर आए। नबियों के हाथ में भी नहीं था। क़ाल, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह, ये अज़ाब जो तुम मुतालबा कर रहे हो ये तो अल्लाह तबारक व तआला लाएगा, इंशाअ, अगर वो चाहेगा तो। और अगर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ गया और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के अज़ाब को दूर कर दिया जाए और अल्लाह के अज़ाब को टाल दिया जाए, तो वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, तुम अल्लाह तबारक व तआला को और फरिश्तों को आजिज़ करने वाले नहीं हो कि अल्लाह ताला अज़ाब को उतारे और तुम अज़ाब को वापस कर दो। ये नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम से बात फरमाई। फिर आगे बात फरमाई कि आज तक मैं तुमको दावत और तबलीग के ज़रिए से अल्लाह पर ईमान लाने की बात और मुझे अल्लाह का रसूल मानने की बात, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की बात, जन्नत और जहन्नम की बात, आखिरत की बात, और मैं तुम्हारे लिए खैर खाही चाहता रहा और नसीहत करता रहा, लेकिन वला यनफ़उकुम नुस्ही, मेरी नसीहत करना ये तुमको फ़ायदा नहीं देगा। इन अरदतु अन अंसह लकुम, अगर मैं तुमको नसीहत का इरादा करूं, इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमको गुमराह करने का इरादा करे। इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुमको गुमराह करना चाहे। इन अरदतु अन अंसह लकुम, और मैं तुमको नसीहत करना चाहूँ तो वला यनफ़उकुम नुस्ही, मेरा नसीहत करना तुमको फ़ायदा नहीं देगा। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो रही है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के साथ में क्या गुफ्तगू हुई उसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और फिर 20 के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर बात को फिर छेड़ दिया कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानती नहीं थी, इसी तरीके से मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते नहीं थे, कुरान पाक को अल्लाह की किताब मानते नहीं थे। अम यक़ूलून इफ्तरा, या ये मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये कहते हैं इफ्तरा हो, इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान मन गढ़ंत बना लिया है। कुल, ए नबी कह दो, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने इस कुरान को अपनी तरफ से गढ़ लिया है और ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, और मेरा गढ़ा हुआ है, तो फ़अलैया इजरामी, उसका गुनाह मेरे ज़िम्मे। अगर मैंने ये मन गढ़ंत कुरान बना लिया है, लिख लिया है, तो फ़अलैया इजरामी, उसका गुनाह मेरे ज़िम्मे। व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, और तुम जो गुनाह करते हो और तुम जो जुर्म करते हो उससे मैं बरी हूँ,
उससे मैं बेजार हूँ। ये किताब अल्लाह की किताब है और अल्लाह का कलाम है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस किताब के अंदर में अल्लाह के अहकाम हैं, आखिरत वगैरह की बातें हैं। तुम्हारा काम ये था कि इस किताब के ऊपर में ईमान लाते। अगर तुम ईमान नहीं लाते और गुनाह करते हो तो अना बरी मिम्मा तुजरिमून, तुम जो कुछ भी गुनाह करते हो इससे मैं बरी हूँ और बेजार हूँ। इसके अंदर में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया और 20 के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत नाजिल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली अता फरमाई कि आपकी मेहनत और आपकी मेहनत का ज़माना और नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत और उनकी मेहनत का ज़माना दोनों का मुकाबला करो, कितनी मेहनत हुई और दोनों की मेहनत के नतीजे के अंदर में ईमान लाने वाले कितने बने। तो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद था। इसलिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा जिक्र फरमाया। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युअमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून। और वही नाजिल की गई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, अन्नहु बात ये है कि लन युअमिन मिन कौमिक, तुम्हारी कौम में से हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा, इल्ला मन क़द आमना, मगर इतने लोग जितने के लोग ईमान ला चुके। अल्लाह तबारक व तआला को अपने इल्म अज़ली और अपने इल्म अबदी के एतबार से मालूम है कि ये जो मुफस्सिरीन के कहने के मुताबिक 80 के करीब लोग जो मुसलमान हुए हैं, नूह अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए हैं, इनसे ज़्यादा ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म इलाही के एतबार, इल्म अज़ली के एतबार से मालूम था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लन युअमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना, जो लोग ईमान ला चुके हैं इसके अलावा और कोई तुम्हारी कौम में से ईमान लाने वाला नहीं है। फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून, जो कुछ भी ये लोग करते हैं तो तुम उनसे नाउमीद मत हो जाओ। अब अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम था दावत और तबलीग का ज़माना और दावत और तबलीग का मेयार ख़त्म हो गया। काफिरीन और मुशरिकीन का कुफ्र और शिरक और जुल्म का मेयार ख़त्म हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब उतारने का फ़ैसला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का अज़ाब उतारने का फ़ैसला किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम और नाफरमान लोगों के ऊपर में पानी का अज़ाब आएगा और पानी के अज़ाब से इनको हलाक और बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचाने के लिए तरीका बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कि कश्ती बनाओ, वस्नइल फुल्क, कश्ती बनाओ, बिअयुनिना, हमारी निगरानी में, व वहीना, और हमारे हुक्म के मुताबिक। उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर में भेजा तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए पहिए का ईजाद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पहिए का ईजाद किया और पहिया बताया किस तौर पर पहिया बनाओ, 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए बनाओ, इस पर माल सामान रख करके यहाँ से ले करके वहाँ जहाँ भी ले जाना हो ले जाओ। उलमा किराम ने लिखा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और मशीनरी की सारी बुनियाद पहिए के ऊपर में है। आप जितनी भी मशीनरी देखें पहिए से चलती है सारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने पहिए की ईजाद करवाई थी। तो तकवीनी तौर पर जो वही नाजिल होती थी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आम तौर पर खेती बाड़ी की वही नाजिल हुई, किस तौर पर खेती करो, ऐसी खेती करो, ये वो वगैरह। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़े सीने का हुनर बतलाया, दर्जी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ई का
कारपेंटर, बढ़ई और सुथार का निज़ाम और हुनर सिखलाया। वस्नाइल फुल्क, नूह कश्ती को बनाओ, बिआयुनिना हमारी निगरानी में, व वहीना हमारे हुक्म के मुताबिक, हमारी वही के मुताबिक यानी हमारे हुक्म के मुताबिक। उलमा किराम ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया पर कश्ती नहीं थी। कश्ती किस तौर पर बनावे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम हुक्म दें, हम बतलावें, इस तौर पर तुम बतलाओ। तफसीर इब्न कसीर के अंदर में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहीना, कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 100 साल तक दरख्त उगाए, 100 साल तक, और दूसरे 100 साल नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्तों को काटा, और तीसरे 100 साल के अंदर में कश्ती को बनाया। यानी कश्ती बनाने के अंदर में 300 साल लग गए। अब ये जो उनकी जो नाफरमान कौम थी वो कह रही थी कि फ़ातिना बिमा ताइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तुम अपने दावे के अंदर में सच्चे हो कि अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो, और न मानने पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम अज़ाब ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अज़ाब लाएगा तो अल्लाह लाएगा। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, और 300 साल तक जो उन्होंने कश्ती बनाने के अंदर में लग गए। और भी इसराइली रिवायतें ये वो वगैरह लंबी चौड़ी बातें हैं, मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर दूँ। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हमारे इल्म के मुताबिक जितने लोग ईमान लाए हैं इससे ज़्यादा ईमान लाने वाले नहीं हैं, और जो बेईमान हैं, काफिर और मुशरिक हैं, तो उनके बारे में आप मुझसे बात मत करना। वला तुखातिबनी, मुझसे बात मत करना, फिल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने जुल्म किया यानी कुफ्र किया, शिरक किया, तुम्हारी बात को नहीं मानी, हमारे अहकाम और वही को नहीं माना, तो उनके बारे में आइंदा तुम बात मत करना। नबी है, नबी के दिल के अंदर में नरमी होती है, नबी के दिल के अंदर में रहमत होती है, तो कहीं हमारा अज़ाब उतर जाए, उसके बाद में किसी को अज़ाब के अंदर में मुब्तला देखो तो फिर उनके बारे में हमसे सिफारिश मत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये वादा ले लिया और फरमाया कि इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक वो लोग जो अज़ाब चाह रहे हैं, मुग़रक़ून, ये पानी के अंदर में डुबो दिए जाएंगे। वयस्नउल फुल्क, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती बना रहे थे। उलमा किराम ने अलग अलग बातें लिखी हैं। एक बात ये भी लिखी है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी थी, 300 गज, और एक गज के अंदर में हम एक हाथ कहते हैं, और एक गज जो है वो 1.5 फीट का होता है। इसीलिए जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के आगे जो लकड़ी खड़ी रखनी चाहिए ये 1 गज की होनी चाहिए, 1 गज यानी 1.5 फीट की होनी चाहिए। तो 1 गज होता है 1.5 फीट का, तो 300 गज लंबी थी। तो 300 को अगर 1.5 के अंदर में ज़रब दें, गुणाकार करें, तो 450 फीट लंबी, और 50 फीट चौड़ी यानी 50 गज चौड़ी यानी 75 फीट चौड़ी, और 30 गज गहरी, 30 गज यानी 45 फीट। मैं याद रखने के लिए इस तौर पर याद रखता हूँ 350 30, 350 30, 300 लंबाई, 50 चौड़ाई और 30 गहराई, और ये गज है उसका डेढ़ा कर देना चाहिए। वयस्नउल फुल्क, अब जाहिर बात है कि तकरीबन आधे किलोमीटर के एरिया के अंदर में तो आ जाएगी, 450 फीट हुई तो आधे किलोमीटर की एरिया। अच्छा, और फिर उलमा ने लिखा है कि 3 मंजिला थी, 3 माला थी, 3 मंजिला थी, और आम तौर पर कश्ती खुली हुई होती है, लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि इस तौर पर कश्ती बनाएं कि चारों तरफ से बंद हो जाए,
जिन लोगों को सवार करना है कश्ती के अंदर में वो सवार हो जाए। सवार होने के बाद में उसके दरवाजे बंद हो जाए तो चारों तरफ से कश्ती बंद हो जाए। बाज़ लोगों ने लिखा है कि गोलाई की और दायरी शक्ल के अंदर में कश्ती बनाई हुई थी, यानी मौजों के अंदर में अगर इधर उधर भी अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे गोल गेंद बॉल होता है इस तरीके से बनाई थी। अब इतनी लंबी चौड़ी कश्ती जो है ये बनाएंगे तो जाहिर बात है कि खुश्की के अंदर में बनाएंगे, ज़मीन के ऊपर में बनाएंगे। वयस्नाउल फुल्क, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे। वह कुल्लमा मर्र अलैहि मलउन मिन कौमिही, और जब जब भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े लोगों का गुजर होता, मलउन का तर्जुमा कल बताया था, मालदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, सरदार लोग हैं, यानी कौम के बड़े बड़े लोगों का तस्करा जब गुजर वहाँ से होता तो सखिरू मिन्हु, लोग नूह अलैहिस्सलाम से मजाक करते, इस्तेज़ा करते, ठट्ठा करते कि ये कहाँ कश्ती बनाते हो, ये कश्ती कहाँ चलेगी, कौन उसको उठा करके समंदर के अंदर में ले जाएगा, कहाँ पानी है कि कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से मजाक और ठट्ठे उड़ाते थे। काल नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, इन तस्खरु मिन्ना, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, हमारा ठट्ठा और इस्तेज़ा करते हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम, तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और हम भी तुम्हारा ठट्ठा उड़ाएंगे, कमा तस्खरून, जैसा कि तुम मजाक करते हो और ठट्ठा और इस्तेज़ा करते हो। अल्लाह का जब अज़ाब आएगा तो उस वक्त के अंदर हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे, और ये कोई दूर की बात नहीं है। फसौफ तअलमून, अन करीब तुम इसको जान लोगे। मन यातीही अज़ाबुन युग़ज़ीही, हर वो आदमी कि जिसके पास में अज़ाब आता है, युग़ज़ीही, उसको रुसवा कर देगा। व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीमुन, और उस पर दायमी अज़ाब उतर आएगा। इस आयत के अंदर में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म का अज़ाब का जिक्र किया। मन यातीही अज़ाबुन युग़ज़ीही व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीमुन, दो मरतबा अज़ाबुन का जिक्र किया। उलमा किराम ने लिखा है कि पहले वाला जो अज़ाबुन है, मन यातीही अज़ाबुन, कि जिसके पास में भी अज़ाब आएगा, ये दुनियावी अज़ाब, युग़ज़ीही, उसको अल्लाह ताला रुसवा कर देगा, बेइज्जत कर देगा, जलील कर देगा दुनिया के अंदर में। व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, और उस पर दायमी अज़ाब आखिरत का उतर पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया उनकी नाफरमान कौम को अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में अज़ाब आएगा, रुसवाई होगी, और आखिरत का दायमी अज़ाब उसी वक्त से उतर पड़ेगा। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, यहाँ तक कि हमारा अम्र आ गया, हमारा हुक्म आ गया, यानी अज़ाब का हुक्म आ गया। अभी एक दो दिन पहले भी बताया था, या दो तीन दिन पहले बताया था कि इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, जब किसी चीज़ को अल्लाह ताला करना चाहते हैं तो उसको असबाब की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कह देता है कि कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, पानी को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दिया तो आसमान से पानी का बरसना शुरू हो गया और ज़मीन पर से पानी का निकलना शुरू हो गया। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया, वह फ़ारत तन्नूर, और तन्नूर में से पानी भड़कने लगा और पानी निकलने लगा। तन्नूर एक तो भट्टी को तन्नूर कहते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर में खड्डा खोदते हैं और आग जलाते हैं, फिर उसके अंदर में रोटी पकाते हैं, हमारे यहाँ भी तन्नूर कहते हैं, अरबी के अंदर में भी उसको तन्नूर कहते हैं। 700 अरबी के अल्फाज ऐसे हैं कि जो गुजरात वाले इस्तेमाल करते हैं, गुजराती ज़बान के अंदर में 700 अल्फाज गुजराती के हम इस्तेमाल करते हैं। आरी, आरी को नहीं कह भाई हैं, आरी हमारे यहाँ जो खेत में काम करने के लिए रखते हैं ना, आरी है, ये आरी नहीं है, हारिसुन है, हारिसुन,
हारिसुन खेती करने वाला। अब फा तो तलफ़ुज़ अदायगी हमसे मुश्किल है तो हारी कर दिया और हारी का बिगाड़ करके आरी कर दिया। आरी खेती करने वाला। हमारे एक दोस्त थे शेख वहाँ सऊदी अरब के अंदर में, तो केरला के बारे में उन्होंने मुझे पूछा कि ये केरला क्या है, केरला क्या है, इसमें केरला। मैंने कहा कि एक तो स्टेट है मंतका केरला, तो कि नहीं केरला लफ्ज़ केरला क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो कहा कि ये सहाबा किराम में से एक सहाबी थे या ताबेई थे, उनका नाम खैरुल्ला था, खैरुल्ला। वो गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर के इस्लाम को फैलाया। और तुम हिंदुस्तानी लोगों को खैरुल्ला खैरुल्ला नहीं आता, जब कैरुल्ला करके उसको बिगाड़ करके केरला कर दिया, केरला। वफारत तन्नूर ये अलामत और निशानी थी। अच्छा, अब तन्नूर, तन्नूर का एक माना तो वो भट्ठी लिखा जो घर के अंदर में रोटी पकाने के लिए होती थी। तन्नूर का दूसरा माना उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सतह ज़मीन को कहते हैं, ज़मीन की ये जो सतह है उसको कहते हैं तन्नूर। वफारत तन्नूर पहले वाले माने के एतबार से अगर माना करेंगे तो मतलब ये होगा कि भट्टी में से आग निकले, भट्टी में से पानी निकले, तन्नूर में से भट्टी में से पानी निकले। और दूसरा तन्नूर का तर्जुमा जो है सतह ज़मीन है, तो आसमान पर से तो बारिश बरसेगी लेकिन ज़मीन के अंदर में से भी पानी निकलेगा। ये दो माना। तीसरा माना ये लिखा है कि तन्नूर मुल्क शाम के अंदर में एक जगह थी और वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी ज़माने में रहाइश थी और वहाँ पर तन्नूर था, तो वहाँ से पानी भड़कने लगे। और चौथा कौल ये लिखा है कि तन्नूर से मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के अंदर में तन्नूर था, उसके अंदर में से अगर पानी निकलने लगे तो ये समझो कि अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ये चार मायने जो है तन्नूर के लिखे हुए हैं। 20 के अंदर में एक बात बता दूं, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा फरमाया है कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो नाफरमान थी और उसने जो है नूह अलैहिस्सलाम के साथ में खयानत की थी। खयानत करने का जब लफ्ज़ बोला जाता है मर्द और औरत के बीच के अंदर में कि फलानी औरत ने अपने मर्द से खयानत की, तो ज़िनाकारी मुराद होती है, ज़िना मुराद लिया जाता है। लेकिन उलमा और अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी के लिए ज़िनाकार औरत को पसंद नहीं किया। इसलिए फ़खानता होना, ये नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने नूह अलैहिस्सलाम के साथ में खयानत की तो कोई नाउज़ुबिल्लाह ज़िनाकारी नहीं की थी। क्या क्या किया था? दो औरतों का तज़किरा है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों दो औरतों का तज़किरा है और दोनों मोमिन नहीं थी, दोनों मुसलमान नहीं थी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ने जो खयानत की तो मतलब ये था कि नूह अलैहिस्सलाम के घर में जो तन्नूर था, भट्टी थी, वहाँ से पानी निकलने लगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान और काफिरा बीवी जो थी वो बस्ती के अंदर में गई और बस्ती में जाकर के कहने लगी कि जो नूह ने कहा था कि भट्टी से जो है पानी निकलेगा, तो हमारे यहाँ भट्टी से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये खयानत की किसने? नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में जो खयानत करने का लफ्ज़ आता है फ़खानतहुमा, खयानत। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के अंदर में जब फरिश्ते गए थे, अज़ाब के फरिश्ते नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्लों के अंदर में गए थे और लूत अलैहिस्सलाम की जो नाफरमान कौम थी उनका काम जो है वो लवातत का था, लौंडाबाजी के वो काम करते थे। ये जैसे खूबसूरत नौजवान रात के वक्त के अंदर में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में पहुँचे तो उनकी जो बीवी थी वो कोई चीज़ लेने के बहाने बस्ती के अंदर में गई और बस्ती में जाकर के कहने लगी कि तुम जिस चीज़ को चाहती हो और पसंद करती हो वो लूत अलैहिस्सलाम के पास में वो चीज़ मौजूद है। तो ये खयानत का माना और मतलब जो है उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है। जा अमरुना वफारत तन्नूर, और भट्टी के अंदर में से पानी निकलने लगे। कुलना
हमने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इहमिल फीहा, कश्ती के अंदर में सवार करो, मिन कुल्लिन, हर जानवरों में से, ज़ौजैन इत्नैनी, दो दो का जोड़ा। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि दुनिया भर के जितने भी जानवर थे उन जानवरों को नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती के अंदर में सवार नहीं किया, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि जो जानवर तुमको काम लगते हैं और तुम्हारे लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, नफ़ा पहुंचाने वाले हैं, वो जानवर जो दूध देते हैं, वो जानवर जो अंडा देते हैं, परिंदे और वगैरह, तो उनको सवार कर लेना। तो उनको सवार किया। वह अहलक, और अपनी अहल को, अहल से मुराद यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं वो मुराद है कि आप अपने अहल को यानी ईमान वाले लोगों को भी सवार कर दो। इल्ला मन सबक अलैहिल क़ौल, मगर वो लोग कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बात और अल्लाह ताला का कौल और अल्लाह ताला का कलिमा साबित हो चुका और गुजर गया, यानी जो ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये तुम्हारी अहल में से नहीं है, तो उनको कश्ती के अंदर में सवार नहीं किया जाएगा। आपके घर के अंदर में भी जो ईमान लावे तो उनको तो कश्ती में सवार किया जाएगा, ईमान न लावे उनको सवार नहीं किया जाएगा। तो अपने घर वालों में जो ईमान लावे उनको सवार करो। वमन आमना, और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं उनको भी तुम कश्ती के अंदर में सवार करो। वमा आमन माहू इल्ला कलील, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग ईमान लाए थे। तो कश्ती के अंदर में सवार किया। सवार होने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आया, ऊपर से पानी बरस रहा था और ज़मीन से नीचे से पानी निकल रहा था। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वक़ाल इरकबू फ़ीहा, कि इस कश्ती के अंदर में सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि, अल्लाह का नाम लेकर, मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ही के नाम से ये चलेगी और अल्लाह ही के नाम से ये ठहरेगी। ये कश्ती कहाँ जाएगी और कब ये तूफ़ान ख़त्म होगा किसी को नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इन्न रब्बी लगफूरुन रहीम, बेशक मेरा रब और मेरा पालने वाला अलबत्ता बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये जो अज़ाब नूह अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम के ऊपर में आया, ये 10 रजब को शुरू हुआ। रजब क्या, रजब के महीने की 10वीं तारीख को यह तूफ़ान शुरू हुआ, 10 रजब को, और 10 मुहर्रम को ख़त्म हुआ, यानी 6 महीने। रजब से रजब 10 रजब से देखें तो रजब के बाद में शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलक़ाद, दिलहज और मुहर्रम। मुहर्रम की 10 तारीख को यह अज़ाब ख़त्म हुआ। इसीलिए मुहर्रम का जो 10वीं तारीख का जो रोज़ा है, आशूरे का जो रोज़ा है, यूँ कहते हैं और उलमा और मुफस्सिरीन ने भी लिखा है कि 10वीं मुहर्रम को अज़ाब ख़त्म हो गया। और जैसा कि आगे लिखा है कि वस्तवत अलल जूदी, ये कश्ती जो वो जूदी पहाड़ के ऊपर में ठहर गई और आसमान पर से पानी बरसना बंद हो गया और ज़मीन से पानी निकलना बंद हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, ये कश्ती तजरी बिहिम, लोगों को लेकर के चल रही थी, फी मौजिन, ऐसे मौजों के अंदर में, कल जिबाल, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे मौजे थे। वनादा नूह इब्नहु व कान फी माज़िलिन या बुनय्या अरकब माना वला तकुन मअल काफिरीन, सारे लोग कश्ती के अंदर में सवार हो गए। नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस, और उनकी बीवियां और उनकी फरमाबरदार और मोमिन बीवी और दूसरे ईमान वाले। एक लड़का जो था कनआन, चौथा लड़का नूह अलैहिस्सलाम का, उसका नाम था कनआन। वो अभी दूर खड़ा था, एक किनारे के ऊपर में खड़ा था। इतने में पानी का आना शुरू हो गया। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत शफ़क़त के साथ उसको समझाना चाहा। और नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि जो लोग ईमान लाए हैं उन्हीं को कश्ती के अंदर में सवार करना है,
मेरे घर के अंदर में भी जो ईमान नहीं लाए उनको कश्ती के अंदर में सवार करना नहीं है। तो बड़ी शफकत और बड़ी मोहब्बत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया कि आज तक तू अल्लाह की और मेरी नाफरमानी करता रहा, ईमान नहीं लाया, कुफ्र और शिरक करता रहा। आज ईमान लिया, तू ईमान ले आएगा तो मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कश्ती के ऊपर में तुझे सवार करने का हक मुझे मिल जाएगा। तो ईमान लिया। काला वनादा नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बुलाया, इब्नहु, अपने बेटे को, वकान फी माजिलिन, और एक तरफ में था, एक किनारे के अंदर में था, या बुनैया, ए प्यारे बेटे, या इब्नी, ए बेटे, या बुनई प्यारे बेटे, या बुनैया, ए प्यारे बेटे, इरकब माना, हमारे साथ में सवार हो जाओ। तो कैसे सवार होगा, कैसे सवार होगा जबकि वो ईमान लाया नहीं। तो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने उस बेटे के सामने ईमान को पेश किया कि ईमान लिया, कलिमा पढ़ ले, इरकम माना, और हमारे साथ कश्ती के अंदर में सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, और इनकार करने वालों में से मत बन। ये नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान के अंदर में बातचीत हो रही थी। बेटे ने कहा, काला कनान ने, नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे ने कहा, सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, सआवी इला जबलिन, जबल पहाड़ को कहते हैं, आवी मैं पनाह ले लूँगा एक ऊंचे पहाड़ की, अभी ऊपर पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ, यासिमुनी मिनल मा, वो पहाड़ मुझे पानी से बचा देगा। उसको मालूम नहीं था कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब है और पानी आएगा तो कितना पानी आएगा कि पहाड़ भी छुप जाएंगे और पहाड़ भी दब जाएंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितने पहाड़ थे उन पहाड़ों के ऊपर में भी तकरीबन 10 गज और 20 गज और 30 गज ऊपर पानी चढ़ चुका था। सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, अनकरीब में पहाड़ का सहारा ले लेता हूँ कि जो मुझे पानी से बचाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं है, इल्ला मन रहीम, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला रहम व करम का मामला फरमाए, वरना कोई बचने वाला नहीं है। वहाल बैनहुमा अल मौजू फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, बाप और बेटे के दरमियान के अंदर में ये बातचीत हो रही थी, नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे थे, इतने में इन दोनों के दरमियान के अंदर में एक मौज आई। वहाल बैनहुमा अल मौजू, दोनों के दरमियान में एक मौज उठी, बड़ी मौज आई। फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, और ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हो गया डुबो दिए जाने वाले लोगों में से। वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी, और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया, या अर्दु, ए ज़मीन, इब्लई माअकी, अपना पानी निकल जा। ज़मीन को भी हुक्म हुआ था, नहीं पानी निकालने का हुक्म हुआ था, और आसमान को हुक्म हुआ था पानी बरसाने का। तो अब अल्लाह का अज़ब ख़त्म हुआ। क़ील या अर्दु ब्लई, हुक्म दिया गया, ये ज़मीन अपने पानी को निकल जा। वया समाउ अक़लिई, और ये आसमान थम जा, यानी अपना पानी बरसाना जो है बंद कर दे। वदीज़ल माउ, और पानी को खुश्क कर दिया गया। वक़ुदियल अम्रु, और मामला ख़त्म कर दिया गया, यानी ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने नजात दे दी और काफिर और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। वक़ुदियल अम्रु, फैसला कर दिया गया। वस्तवत अलल जूदी, और कश्ती जो है जूदी पहाड़ के ऊपर में ठहर गई। वकीला, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहा गया, बअदन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, दूरी हो ज़ालिमीन कौम के लिए और जुल्म करने वाले लोगों के लिए। थोड़ी सी एक दो आयत हैं, सिर्फ तर्जुमा कर देता हूँ। वनादा नूह रब्बहु, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। फ़क़ाला, और अर्ज़ किया, रब्बी, ए मेरे परवदिगार, इन नबरी मिन अहली,
मेरा बेटा तो मेरे अहल में से था, वइन वादक अल हक़, और तेरा वादा तो हक था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वादा किया था कि तेरे अहल को मैं बचाऊंगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू फैसला करने वालों में सबसे मजबूत फैसला करने वाला है। अगर तू फैसला करना चाहे तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बात हुई कि मेरा बेटा जो मेरे अहल में से था और डुबो दिया गया। क़ाल, अल्लाह ताला ने फरमाया, या नूह, ए नूह, इन्नहु लैस मिन अहलिक, ये बेटा जो डूब गया ये तेरे अहल में से नहीं था। अहल से मुराद घर वाले नहीं, बल्कि अहल से मुराद ईमान लाने वाले, और वो बेटा जो था वह ईमान लाने वालों में से नहीं था, बल्कि उसका अमल भी अच्छा नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहीन, ये बेटा जो डूब गया उसका अमल अच्छा अमल नहीं था। लिहाजा फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्मुन, आइंदा मुझसे सवाल मत करना ऐसी चीज़ों के बारे में कि जिसका तुमको इल्म नहीं है। इन्नी आइज़ुका, अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, इन्नी आइज़ुका, ए नूह, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, अन तकून मिनल जाहिलीन, कि तुम कहीं जाहिल लोगों में से मत हो जाना। बेईमानों के लिए सिफारिश करना और अपना बेटा जो काफिर था, मुशरिक था, उसके लिए सिफारिश करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्मुन, जिन चीज़ों का मुझे इल्म नहीं है उन चीज़ों का मैं सवाल करूँ, उससे मैं पनाह मांगता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वइल्ला तगफिरली व तरहमनी, और अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया और तूने मुझ पर रहम नहीं किया तो अकुम मिनल खासिरीन, मैं भी हो जाऊँगा नुकसान उठाने वाले लोगों में से।